Hello students, today we will start the first chapter of Vistas and the name of the chapter is The Third Level. It has been written by Jack Finney. Through this story, the writer wants to tell us when people are in tension, when people are in insecurity, when there is a condition of war in the world, people go mad. They start searching for some ways to get out of this situation. And in this situation, they can be in a situation means they can find out so strange ways to get out of it, like they start daydreaming, and first of all they start wishing if it should be like that, and they start believing that it is like this, and it creates problem. It makes them mentally ill. And what is the problem? Because of insecurity, because of war. This story is a blend of fiction and reality. It also expresses man's desire to escape from the realities of life. Which realities am I talking about? The realities of world war, the realities of insecurity in the life. People were facing this situation. They were thinking that they would also die. They would also be killed in the world war. That's why they were feeling insecurity. And these realities were there in front of them. They could not escape them. But if in realities they didn't have any way to get out of it, they started searching it in their dreams. First of all they started wishing, but then they started believing on it, on their thinking. So they had the desire to escape from the harsh realities of life. In this story, Charlie is the main character. One day, by chance, he slips into the past. How? There is a station in New York, Grand Central Station. I want to show you the picture of Grand Central Station. This is the picture. You can see in this picture that there is a floor here. We are able to see that people are entering in it, and it is underground. So this Grand Central Station has two levels only. And what happened with Charlie? This is the Grand Central Station. After coming in, people have to people have to go from these stairs to the ticket windows, and they have to take, and after that they take their trains to their destinations. It has only two levels, but what Charlie thought, if there is third level also, what if there is third level also, and from there if they can go back to their past. How curious it is. It is like time travel. If there is a third level on the railway station, and from there if he can catch a train which can take him to 1890, that was a golden era. He had spent his childhood in those years, and he enjoyed it very much, so he wanted to go back to that period. It was his thinking, but it is not clearly mentioned in the story that he was thinking like this. What happened? One day he was late at his office, and when he was coming back to his home, he wanted to take train from the Grand Central Station, and for that he had to reach to the second level. But he got lost. He mentioned here that earlier also he had lost his ways on the second level, or on the first level of Grand Central Station. And he mentioned that one day he lost his way, and he
reached to a tunnel, a, a mile long tunnel, and from that tunnel he emerged out in the Roosevelt hotel. So फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में से वो एक टनल से होते हुए एक होटल में निकला जा करके. वन डे ही रेज टू अ ऑफिस बिल्डिंग अंडरग्राउंड. सो ही वॉज थिंकिंग के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो ट्रीज की ब्रांचेज की तरह बढ़ रहा है. ऑल्दो इट वॉज हिज इमेजिनेशन, वो सब कल्पना कर रहा था, ऐसा रियलिटी में नहीं था. तो उस दिन भी जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया, उसको सेकंड लेवल पर जाना था, तो वो एक ऐसे ही कॉरिडोर से होते हुए गया जो कि बिल्कुल खाली था, वहाँ पर कोई आदमी उसे दिखाई नहीं दे रहा था. और वो उसमें चलता गया और एंड में वो एक ऐसे लेवल पर जा कर के निकला जहाँ पर एवरीथिंग वॉज स्ट्रेंज. सपोज आपको अगर 40 साल या 30 साल पीछे पहुंचा दिया जाए या 60 साल पीछे पहुंचा दिया जाए, तो आपको अलग ही नज़ारा दिखाई देगा. लोगों के घर अलग टाइप के दिखाई देंगे, लोगों की बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, उनके कपड़े अलग होंगे, उनकी थिंकिंग अलग होगी, उनके शौक अलग होंगे. तो उस स्टेशन पर जब वो पहुंचा तो उसने जो चीज़ें वहाँ देखी वो सभी डिफरेंट थी. वहाँ उन स्टेशन पर पहली बात तो टिकट विंडोज़ कम थी, और लोगों ने जो कपड़े पहन रखे थे वो ओल्ड फैशन थे. ऑब्वियसली वो तो होंगे ही, क्योंकि इतने साल पीछे जब इंसान जाएगा तो डेफिनेटली उसको डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स दिखाई देंगे. और हर एक चीज़ डिफरेंट थी. इंजन जो ट्रेन के थे वो अलग टाइप के थे. तो वो हैरान था देख करके, और फिर उसने सोचा कि भाई वो तो शायद ओल्ड वर्ल्ड में आ गया. तो उसने कंफर्म करने के लिए एक न्यूज़पेपर वेंडर बैठा हुआ था, उसके न्यूज़पेपर को उसने देखा. उस न्यूज़पेपर पे जो न्यूज़ थी फ्रंट पेज पर, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की थी. तो वो बहुत पहले की खबर थी. तो उसने सोचा कि भाई यहाँ से तो मैं इलिनॉय गेल्सबर्ग की टिकट्स ले सकता हूँ और अपने पास्ट में जा सकता हूँ जहाँ पर मैंने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया था. ऑल दीज थिंग्स वर इन हिज इमेजिनेशन. एंड he went to the ticket window and he wanted two tickets, one for him and other for his wife Loisa. He wanted to go to Illinois, but when he uh, tried to give money to the ticket collector, the person in the window got angry. He said, if Charlie was making full of him by giving that money, means उसके अकॉर्डिंग वो नोट्स तो नकली थे, होंगे भी, क्योंकि वो पास्ट में चला गया. तो अब के नोट्स अलग हैं, पहले के अलग होते थे. सो उसने सोचा कि भाई भले ही वो पास्ट में इलिनॉय में जा कर के अपने पुराने अच्छे दिनों को जीना चाहता है, बट जेल्स तो उस वक्त भी बहुत बुरी थी, इसलिए उसने जितना जल्दी हो सकता था वहाँ से वो निकल लिया. ये स्टोरी उसने अपने एक फ्रेंड को बताई, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. उसको उसने बताई और उसके फ्रेंड ने उसको बताया कि भाई वो हार्श रियलिटी से बाहर निकलना चाहता है, और इसके लिए उसने अपने जीते जागते वो वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट की है. यानी कि चलते चलते जागते हुए उसने सपना लिया है, और सपना भी कैसा लिया, अपनी इच्छा पूरी करने का. क्या क्या इच्छा? उस इनसिक्योरिटी वाली लाइफ को छोड़ करके अपने पास्ट में वापस चला जाए. बहुत सारे लोगों को आपने आजकल देखा होगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को आपने देखा होगा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, वो अपने बचपन की या अपनी जवानी की फ़ोटोज़ शेयर कर रही हैं, और बहुत ही ज़्यादा शेयर कर रहे हैं. तो ये हमको दिखाता है कि वो भी अपने पुराने समय को याद कर रहे हैं जिसमें वो खुश थे. व्हाट इज़ दिस? वो इस इनसिक्योरिटी और इस टेंशन से बचना चाहते हैं, और वो अब क्या चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में कोई नहीं सोचना चाहता है, बिकॉज दे नो दैट फ्यूचर में प्रॉब्लम आ रही है.
कोविड-19 के रूप में। तो वो सभी पास्ट में शेल्टर ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के उन अ, खुशी से भरे हुए पलों को याद कर रहे हैं और उनको रीलिव करना चाहते हैं। तो चार्ली भी वही चाहता था, बट उसने तो हद ही पार कर दी। उसने उस विश को रियलिटी मान लिया कि, और उसको ये लगा कि थर्ड लेवल है और वो वहाँ से जा सकता है। और वो अपने साइकेट्रिस्ट को कह रहा है कि मैंने देखा है, मैं गया था, मैंने वहाँ पर न्यूज़पेपर भी देखा और उस न्यूज़पेपर के मैंने लाइब्रेरी में ढूंढा, लाइब्रेरी में सेम न्यूज़पेपर मुझे उसी डेट के साथ मिल गया। So these all are related to his imagination. It is his waking dream wish fulfillment. बट चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो था उसने ये कहा कि भाई यू कांट escape from this reality, that's why you have searched a way to get out of it. और तुम जो स्टैम्प्स इकट्ठा करते हो वो भी उसका ही एक एग्जाम्पल है कि तुम जब भी कोई इंसान कोई शौक रखता है ना, तो वो अपनी ज़िंदगी की प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जो टेंशन है, उनसे बचने के लिए वो शौक अपने पूरे करता है और उनमें अपने आप को डुबा देता है, खो देता है। तो ही सैड कि तुम स्टैम्प इकट्ठा करते हो तो वो भी एक इसी चीज़ का एग्जाम्पल है कि तुम प्रेजेंट वरीज से बचना चाहते हो। तो चार्ली कहता है कि भाई मेरे ग्रैंड डैड जो थे उन्होंने स्टैम्प इकट्ठा करना स्टार्ट किया था, उनके समय में तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी थी, उनके समय में तो कोई टेंशन भी नहीं थी, एवरीथिंग वाज फुल ऑफ इन्जॉयमेंट इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने ये रिफ्यूज़ क्यों ढूंढा स्टैम्प इकट्ठा करने का, और उन्होंने जितना कलेक्शन किया था उसी कलेक्शन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो यू कांट से कि दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज। ही वॉज ट्राइंग टू से दैट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, और इसलिए उसने ओल्ड करेंसी नोट्स पाना चाहे। और उसने क्या किया, अपने बैंक से सारे पैसे निकाल लिए और उन सभी पैसों को कन्वर्ट करा लिया ओल्ड करेंसी में। इसके लिए उसे एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ी, एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ा, और उसको पता था कि वो ग्रैंड सेंट्रल ढूंढ लेगा। और जैसे ही वो ढूंढ लेगा वो वहाँ से अपनी वाइफ के साथ इलिनॉय की टिकट्स लेकर के और अपने पास्ट में चला जाएगा। दैट वुड बी अ वेरी वेरी हैप्पी टाइम दैट ही वुड स्पेंड देयर। सो ही वॉज सर्चिंग, वन डे ही केम टू नो, एक दिन उसको पता लगा कि उसका फ्रेंड सैम गायब हो गया, वो दिखना बंद हो गया। एंड वन डे व्हेन ही वाज सर्चिंग, fumbling or just trying to see old first day covers of his grandfather and his फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जब भी कोई न्यू टिकट इशू होती है, पोस्टल जो टिकट्स होती हैं जो हम लेटर्स पर लगाते हैं उनको पोस्ट करने से पहले, आजकल तो उसका चलन कम हो गया है क्योंकि मोबाइल फ़ोन और जीमेल ईमेल ने बहुत सब कुछ ईजी कर दिया है। हमको चिट्ठियाँ भेजनी ही नहीं पड़ती किसी के पास, लेटर्स हमें भेजने ही नहीं पड़ते। लेकिन पहले ये चीज़ें हुआ करती थी, और उसको करने के लिए हमें क्या करना होता था, हमें स्टैंप लगानी होती थी लेटर के ऊपर। तो वो स्टैंप जो होती थी वो बदलती रहती थी, जैसे नोट्स पर चेंज होती रहती हैं तस्वीरें, उसी तरह से स्टैम्प्स पे भी बहुत सारे चेंज होते रहते थे। तो जब भी कोई न्यू स्टैम्प रिलीज़ होती थी, लोग क्या करते थे, उस न्यू स्टैम्प को एक एनवलप ले करके उस पर लगा देते थे, और लगा करके अपना ही एड्रेस डाल करके उसको लेटर बॉक्स में डाल देते थे उसी दिन। अब पोस्ट ऑफिस में उस लेटर के ऊपर स्टैंप लगाई जाती थी उस दिन की डेट की, जो ये प्रूव करती थी कि ये लेटर किस दिन पोस्ट किया गया था। अब वो लेटर ऑब्वियसली उसी बंदे के पास आएगा क्योंकि उसी ने खुद डाला है उसको, तो उसके घर पे आएगा वो। तो वो उसको खोलते नहीं थे क्योंकि उसके अंदर वो कुछ लिखते नहीं थे, वो सिर्फ इसीलिए इस चीज़ को इकट्ठा करते थे कि जिस दिन स्टैंप रिलीज हुई है उसी दिन हमारे पास ये पोस्ट हुई है, और दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। ये उन लोगों के शौक हुआ करते थे। तो उन फर्स्ट डे कवर्स में चार्ली सर्च कर रहा था तो उसे वहाँ पर एक ऐसा लेटर मिला जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। क्या मिला उसे? उसे एक लेटर मिला सैम की तरफ से। वी नो हु इज सैम। सैम इज़ द साइकेट्रिस्ट
साइकाट्रिस्ट ऑफ चार्ली, जिसको उसने अपनी ये स्टोरी बताई थी कि उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ढूंढा है थर्ड लेवल पर, जिससे वो पास्ट में जा सकता है, 1890 में जा सकता है। तो सैम के लेटर में क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि भाई मैं पहले ये इच्छा करता था कि काश जो तुम बता रहे हो वो सच हो। क्या बता रहा था चार्ली के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल है जिससे हम पास्ट में जा सकते हैं। मैं ये इच्छा करता था कि काश ऐसा हो, लेकिन फिर मैंने बिलीव करना शुरू कर दिया कि शायद ऐसा नहीं, ऐसा ही है। एंड आई फाउंड द थर्ड लेवल एंड आई हैव रीच्ड हियर इन 1894 एंड आई एम लिविंग हियर एंड लाइफ इज सो फुल ऑफ हैप्पीनेस हियर। चार्ली, बड़े मज़े आ रहे हैं यहाँ पर, और मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, ढूंढ लो, बहुत मज़ेदार ज़िंदगी है यहाँ पर। तो व्हाट डज इट शो? मनोचिकित्सक सैम भी इस चीज़ से अफेक्ट हो गया। तो राइटर क्या शो करना चाहता है यहाँ पर? मनोचिकित्सक भी एक इंसान है, उसकी भी इच्छाएं हैं, वो भी वर्ल्ड की वरीज और इनसिक्योरिटीज से परेशान होकर के शेल्टर चाहता है, और उसने अपने पेशेंट की, देर इज़ एन आयरनी, जिस इंसान से एक्सपेक्ट किया गया था कि वो उसकी मेंटल कंडीशन का ट्रीटमेंट करेगा, वो उसको उसकी मानसिक प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, वो खुद मानसिक रोगी हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द बैड इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर, बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन। वो भी एक इंसान है, उसको भी लगा कि काश ऐसा हो कि हम वापस चले जाएं पास्ट में, और वो भी मानसिक रोगी हो गया, और उसने भी इमेजिनेशन। बट इट कैन ऑल्सो बी द इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, कि भाई मैंने उसको बताया और वो उसने खुद ढूंढ लिया। ये भी हो सकता है कि उसने उसको भी इमेजिन कर लिया कि उसका फ्रेंड चला गया है वहाँ पर। तो अब चार्ली और उसकी वाइफ दोनों सर्च कर रहे हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के लिए, क्योंकि उनको प्रूफ मिल गया है कि ग्रैंड सेंट्रल पे स्टेशन पर थर्ड लेवल है, और वहाँ से पास्ट में जाया जा सकता है। तो ये स्टोरी है जो, ये हमें क्या दिखाना चाहती है? ये दिखाना चाहती है कि जब वर्ल्ड में टेंशन होती है, इस तरह से लोग परेशान होते हैं, वो अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, एंड दे हैव टू टेक हेल्प ऑफ दे दे हैव टू टेक द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स फॉर देयर मेंटल ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोग मानसिक बीमार हो चुके हैं, अभी आपने देखा कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, एंड दे वांट अ शेल्टर, उनको भी एक एस्केप चाहिए। बट जनरली लोग कहाँ ढूंढते हैं? अपनी इमेजिनेशन में। दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हैप्पीनेस, और वो जनरली पास्ट में जाते हैं, या फिर अपना एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं जिसमें वो अपने हर एक चीज़ को उस कंडीशन में देखना चाहते हैं, या देखते हैं जिसमें वो चाहते हैं अपने वर्ल्ड को। सो चार्ली भी वही कर रहा था, वो अपने आप को बचाना चाहता था, और उसने इतनी बड़ी इमेजिनेशन कर ली कि थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। दैट वॉज नॉट देयर, इट वॉज ऑल इन हिज इमेजिनेशन। तो यहाँ पर एक इंटरसेक्शन है टाइम का और स्पेस का, कि भाई जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके दो लेवल तो हैं प्रेजेंट में, और थर्ड लेवल पास्ट में है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, वी ऑल नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ अ साइंस फिक्शन। और ये सिर्फ और सिर्फ हमें ये दिखाना चाहती है कि वरीज, वर्ल्ड वॉर और टेंशन और इनसिक्योरिटी जो होती है वो इंसान को इस हद तक पागल बना देती है कि वो अपने दिमाग का संतुलन खो देते हैं, एंड दे स्टार्ट ड्रीमिंग illogical things. And this is the story which we are going to read. Here I wanted to tell you the summary of the story. Hope that you have understood it. Okay students, bye.